Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, and Osman with your English lecture. We were reading 2.1 from Unit 2, It's Country for Me. The main character was Joel. We have read this paragraph in previous lecture. Joel is the youngest of Ed and Betty Holland's 6 children. And in this paragraph, we came to know about his family, how many members they have, how many brothers and sisters he had, and what they were doing. And here we came to know that one of his sister was a nun, but her passion was also to become a farmer. And we also came to know that Joel was the youngest one, and he was thinking that he has a lot of bosses to control him. So let's proceed forward. Joel used to be largely at somebody's side. Many a times he was helping others, watching and listening, lending a hand, giving support, or going on the run for a tractor or forgotten tool. Going on the run means quickly going to fetch things or to go for the tractor, or if someone has forgotten something, they will call him and say, go and bring it. He took the occasional bossing he got in stride. So many a times people are commanding him, people are giving him orders to do that, and he was fulfilling that. ये थोड़ा सा पहले टाइम की वो चीज़ आपको बता रहे हैं कि हर बंदा अपने हर काम के लिए उसको आवाज़ देता था और हर बंदा उसको कंट्रोल करता था, बीइंग एल्डर, बिकॉज ही वाज द यंगेस्ट वन, सो ही वाज बीइंग ट्रीटेड like that कि everybody can command him. Now he is so busy with his own work because he has started his individual work on farm. Now he has learned many skills and he is helping his father on the farm. तो अब क्योंकि वो individual basis के ऊपर सारा काम कर रहा होता है, he is no longer available to be everybody's gopher. So अब वो gopher, a person who can take orders and go and fulfill them. आपके अहकामात पर एकदम से अमल करने वाला बंदा, कोई भी ऐसा जो आपके काम भाग भाग के करता हो, तो कैन कॉल गोफर. सो अब वो हर एक के कामों के लिए अवेलेबल नहीं था क्योंकि उसने अपना काम शुरू कर दिया था. इफ़ आई हैड जस्ट वन वर्ड टू डिस्क्राइब जोएल, इट वुड बी enthusiasm. Enthusiasm, passion with excitement. When you are having too much passion, spirit to do things, जब आप में बहुत ज़्यादा जोश और जज्बा होता है, तो कहा जाता है अगर जोएल को किसी एक वर्ड में डिस्क्राइब किया जाता तो दैट वाज enthusiasm, says Betty. His mother says he uses his youthful energy indiscriminately, without any difference, without any discrimination, बगैर कोई इम्तियाज़ किए. On one summer day, he jumped 15 fences. Now, these are all the work, all the chores which he has done on his farm. कि उसने क्या क्या काम किए. You just have to memorize them as it is. So you can quote them as a text when you are going to write down the answers. He jumped 15 fences, drove farm machinery 25 miles. ड्रो फार्म मशीनरी, मशीनें, व्हीकल्स, जो भी वहाँ पे वो मशीनरी यूज़ कर रहे थे, थ्रेशर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, इस तरह की चीज़ें, उनको उसने 25 मील तक चलाया. फेड 320 एनिमल्स, फेड सेकेंड फॉर्म ऑफ फीड, ओपन एंड क्लोज्ड 8 गेट्स, वॉकड एंड रैन अबाउट 8 miles, जम्प्ड ऑन एंड ऑफ द ट्रैक्टर 26 times. 26 टाइम वो ट्रैक्टर पे चढ़ा और उतरा. लिफ्टेड 900 pounds ऑफ ग्रेन, grain means wheat, अनाज. shoveled 4,000 pounds, shoveled digging, खोदना, ज़मीन खोदना. ate about 2600 calories. अब ये सारे काम करने के साथ ही also had a very good appetite as well. जब आप इतना सारा काम करते तो फिर आपको भूख भी लगती है.
हमारे जो शहर के बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर उनको या तो स्लीपिंग सिकनेस हो रही होती है, या उनका बीपी लो होता है, या उनको बिल्कुल भूख नहीं लग रही होती। मैनी अ टाइम्स आप हर घर में, और अभी आप भी बच्चों से अगर पूछा जाए तो आप सारे के सारे जो है वो खाने के कोई इतने शौकीन नहीं होंगे, और अगर होंगे तो सिर्फ जंक फूड के। हेल्दी और अच्छा न्यूट्रिशन वाला फूड आप कम ही खाते हैं, तो ज़ाहिर है कि फिर उस हिसाब से सेहत भी नहीं बनती। तो जब जोएल इतने सारे काम करता था तो वो खाना भी बहुत अच्छी तरह से खाता था। ऑन वीकेंड्स एंड ड्यूरिंग द समर जोएल वर्क्स आउटडोर्स एनीवेयर फ्रॉम 8 to 15 hours a day। MCQ ऑल्सो, जब वीकेंड्स होते थे समर में तो आउटडोर का भी काम करता था, 8 से लेकर 15 घंटे एक दिन में। द ओनली टाइम ही माइंड्स इट डोंट लाइक इट। सिर्फ वाहिद वो वक्त जब वो पसंद नहीं करता काम करना, ड्यूरिंग अर्ली स्प्रिंग, बाहर के मौसम के शुरू में। अब वाई देन द स्नो मेल्ट्स, क्योंकि उस वक्त बर्फ़ पिघलती है, एंड रेन आफ्टर पोर्स डाउन डेली, और हर रोज़ बारिश होती है। टर्निंग द फार्म यार्ड इनटू अ स्वैम, ऑल वेटी एरिया, दलदल की तरह की जगह बन जाती है। उसका पूरा जो फार्म है वो एक मिट्टी और कीचड़ की दलदल में तब्दील हो जाता है। मड सक्स एट हिज बूट्स आर ऑल कवर्ड और सैंक इनटू द मड, उसके जूते भर जाते हैं मिट्टी से। मेकिंग वॉकिंग इट सेल्फ अ टेडियस चोर, टेडियस डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए, सिर्फ चलना ही मुश्किल हो जाता है, गीली मिट्टी में सारे पाँव उठाना चलना। मोर देन द बॉदर मीन्स डिफ़िकल्टी, टेंशन, परेशानी। दो जोएल हेट्स द ugliness a thing which is not beautiful, बदसूरती को कहते हैं, क्लमजीनेस को कहते हैं, ऐसी चीज़ जो खूबसूरत ना हो, जो आपको कोई बहुत एस्थेटिक सेंस में आपको कोई अच्छा इम्पैक्ट ना दे रही हो। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती थी, एवरीथिंग सीम्स टू सो ऑफुल, नॉट गुड, अजीब, डल, बोर हो जाती है। रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच एनर्जी हिज वर्क कंज्यूम्स, हाउ मच एनर्जी ही इज़ कंज्यूमिंग, ही इज़ यूजिंग, और कितनी ज़्यादा उसकी एनर्जी, उसकी ताकत खर्च होती थी। जोएल हैज़ प्लेंटी लेफ्ट ओवर, उसके बावजूद अ लॉट ऑफ ही रिज़र्व, बहुत ज़्यादा ताकत और तवानाई उसमें वो बचा के रखता था फॉर स्पोर्ट्स, खेलों के लिए। ही हंट्स डियर एंड ट्रैप्स वाइल्ड लाइफ इन द फॉल, हिरन का शिकार करता था और जंगली जानवरों के लिए जाल लगाता था। एंड स्नो मोबाइल्स इन द विंटर, स्नो मोबाइल्स, बर्फ़ वाली जो गाड़ियाँ होती हैं वो बर्फ़ में चलाता था सर्दियों में। स्प्रिंग ब्रिंग्स सॉफ्ट बॉल एंड बास्केटबॉल गेम्स, एंड समर प्रोवाइड्स वेदर फॉर water skiing and fishing. Nearly all his favorite sports are played outdoors. MCQ again, what were the favorite sports of Joel, and does he like outdoor or indoor games? तो इसमें भी आप इजीली याद रख सकते हैं कि उसको सारी आउटडोर गेम्स पसंद थी। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करते जाएं, एनालिसिस भी साथ साथ करते जाएं, एंड मेक अ जर्नल कंपैरिजन, किसी और के साथ नहीं, अपने साथ ही कंपेयर कर लें कि द बॉय विच इज़ बीइंग who is being described here, he is only 13 years old. So what type of work he is performing, how he is maintaining all his routine, and he is also going to school, he is also studying, and how he is managing all these things. Can you do that all this in the same manner as Joel is doing? Think, and you can answer later. If he had to live in the city for a year, अगर उसको एक साल के लिए शहर में रहना पड़ता, Joel says he would mostly miss the land, the farm, ज़मीन, खेत, जहाँ पे वो हल चलाते हैं, फसलें उगाते हैं। तो वो कहता है अगर मुझे एक साल के लिए शहर में रखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे याद आएगी, मुझे अपनी ज़मीन याद आएगी। आई वुड मिस seeing things grow, how they are making crops grow, how they are throwing seeds there, किस तरह वो sowing seeds होता है, फिर reaping of the crops होता है, कैसे वो बीज लगाते हैं, पनीरियाँ लगाते हैं, उसके बाद किस तरह से वो
फसलों को काश्त करते हैं, कैसे वो छोटे छोटे जानवरों को पालते हैं, उनको बड़ा करते हैं. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सीइंग थिंग्स ग्रो, चीज़ों का बड़े होते देखना. द चेंज ऑफ सीजन्स, कैसे मौसम बदलते हैं. इनफैक्ट इफ़ जोएल कुड चूज़ एनी प्लेस इन द वर्ल्ड टू लिव, ही गेसेस, he thinks he would live right here on the farm, not anywhere else. It would have to be country, this particular place. Country does not mean mulk. Country means rural area, देहाती इलाका, देही इलाका. After living out here, जब आप यहाँ रह चुके होते हैं, I don't think I would ever want to be in the city. I am not suitable for the city, or city will not be suitable for me, or I will not be comfortable there. कि मुझे ये environment, ये जगह, ये चीज़ें इतनी पसंद हैं कि मैं शहर में रह ही नहीं सकता. You just don't have the freedom. If you are living in a city, according to Joel, you are not free there. Or the responsibilities. You have a lot of responsibilities to do. You are not free to do something. You are always bound, or you are always being told what to do. आप हमेशा पैम्पर्ड होते हैं. सिटी लाइफ के बच्चे बहुत पैम्पर्ड होते हैं, इतने इंडिपेंडेंट नहीं होते. इवन यूनिवर्सिटी लेवल तक जाके वो डिपेंडेंट ही रहते हैं. इंडिपेंडेंट डज नॉट मीन कि आप सबको साइड पे करके और अपने काम खुद से करना शुरू कर दें. इंडिपेंडेंट मीन्स हाउ ही इज़ मैनेजिंग लाइफ, हाउ ही इज़ लर्निंग स्किल्स, हाउ ही इज़ बिकमिंग मैच्योर एंड ग्रोन अप. आई एम नॉट सेइंग अ सिटी किड डज नॉट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. वो कहता, मैं नहीं कहता, आई एम नॉट बाइस्ड, और आई एम नॉट हैविंग एनी ग्रज के जो सिटी चिल्ड्रन हैं उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. उन पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. आप पे कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. सोना है टाइम पे, खाना है टाइम पे, पढ़ना है टाइम पे, खेलना है टाइम पे. ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ना. इसके अलावा आप क्या करते हैं. बेटे अगर हैं तो वो कौन सा एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं पढ़ाई के साथ, और बेटियां कौन सा पढ़ाई के साथ सारा घर संभाल रही होती हैं. अमूमन माएँ पढ़ने वाले बच्चों से कोई काम नहीं करा रही होती. सारा का सारा फोकस, या आपको कोई डांट भी पड़ती है तो इसी बात पे पड़ रही होती है कि पढ़ लो, बैठ के सारे काम छोड़ दो, पढ़ लो. So there is a difference, but you don't work as a family the way you do on a farm. But what is the difference between city life and a farm life? When you are in a farm, your whole family is working together, and when you are in a city, might be father alone is working, or somehow sometime mother and father both are working. But here is no concept of the working of children along with their parents. ज़ाहिर सिनेरियो डिफरेंट है. फार्म पे काम की नौयत मुख्तलिफ है, तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो है. सो इसलिए भी फार्म लाइफ में सारी फैमिली कलेक्टिवली काम कर रही होती है. इट वुड जस्ट हैव टू बी country for me. Country for me here has double meaning. Country for me, the place where I want to live, and country for me, the whole country. मेरा मुल्क यही जगह है. My homeland is this. I love this place. This is everything for me, or this is my final choice as well. So if you have a question that why Joel prefer to live here, so you can give all these answers. So again, alhamdulillah, we have completed chapter 2.1 today. All text we have read. Again, I will give you inshallah a comprehensive quiz from this chapter, and I am hoping that you will solve that quiz to check yourself, analyze yourself, that how much you have grasped or understood after this lecture. This is all for today. Stay blessed. Thank you.